Starts off with a good delivery outside the off stump. Dot delivery. Officials in this particular game, Sushant Salgaonkar and also Abhijit Tarekar. The scoring has been handled by Triveni Sawant, and the digital scoring by Ajit Achrekar. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. DJ Sandeep. Alongside me, I've got Ashok Naik sir and also Jay Bhosle sir. And Tamba. Exactly perpendicular and diagonally looking at us. Good delivery. Straight to the fielder. Another dot delivery. And nicely sitting in the shed is Damba. That's big. Taking the aerial route and might have just been one bounce or throws for four. Just that short arm jab. Not trying to overhit the ball, but got enough power to get a boundary. That will be wide. Extras. The score moves on to 5 with that extra. Turn to the bat, straight to the field. A chance? No, not quite. Bit loose was Raghunath Kaskar on that occasion. A single taken. The score moves on to 6. Brings the left-handed Saidat on the strike for the first time. Full toss. Long gap. Fielder can't reach. In fact, gets a boot in it. Snehal Marik coming in from the mid-wicket fence and stopping a certain boundary for his team. So 3 runs added after completion of the first. It's 9. 9 without loss after the first over. Sandesh Thakur from the commentary box end. Loads of experience for him. Left armer has been playing cricket since many years now. Very influential with his batting as well as bowling. Left armer against the left-hander is to create that bit of an angle. A man has been posted on the mid-wicket fence and also at extra cover. Goes down the ground and goes one bounce into the fence for 4. Short delivery and thumped over the bowler's head. Score moves to 13 with that boundary.
Reverse sweep, missed out. And trying to go with the top, missed out on that occasion. Goes again. Field after the ball, and that will get into the boundary with utmost ease. Yet another boundary. Score moves to 17 with that 4. Slight change in field now. Let's cut away. Straight to the field at short third. Another dot delivery. PPL Perennial Premier League powered by Gomanchal Dairy. Will be a dot delivery. And that has been taken upstairs for review. Maybe a clear indication that the umpire might have ruled it in favor of the bowler, saying that the batsman has shuffled. Naked eye, it looked like he just shuffled. Let's see what does the third umpire thinks about it. Does he agree with Abhijit Tarekar, who is on the park? So it's a dot ball. You can stay with your decision. A perfect decision. As I already explained that the batsman just shuffled and the review has been lost by the batting team. Good delivery. Straight to the field, a chance. Not quite. Better throw would have had the batsman in trouble, but not to be. Manoj Tandil. After completion of 2, it's 18. 18 without loss after the 2 overs. 18 without loss after 2 overs. 9 first, 9 coming from the power play over. The Dhruv over, where all the fielders are inside the 30-yard ring. Will be change in voice. It will be Ashok Naik sir with you in the com box. थैंक यू श्याम, धन्यवाद. बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद. इस बार कोई ज़्यादा समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद स्लिप पर फील्ड होती हुई एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजी करते हुए प्रथमेश ठाकरे जिन्होंने पावर प्ले में शुरुआत की थी, ये चलता हुआ जो कि ध्रुव ओवर, पीपीएल ओवर. इस बार थोड़ा सा दूर रखा ऑफ स्टंप से, खड़े खड़े बल्ला घुमाया था, कट होकर बाहर की तरफ निकली, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर रुका हुआ 18 रनों पर. ओपनिंग जोड़ी अमित मुलगांवकर और उन्हीं के साथ साई दत्त कोठावड़े, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए. राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर प्रथमेश. पुलर लेन की गेंद अक्रॉस दी लाइन, मिड विकेट पर खेलना चाहते थे. लगातार 3 डॉट गेंदे. खेल जारी है तीसरे ओवर का. टॉस जीता HYS वॉरियर्स आशापुर क्रिकेट टीम ने. फील्डिंग का फैसला सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को आमंत्रित किया. पहला मुकाबला बहुत अच्छा मैच समाप्त हुआ. एक गेंद बाकी रखकर मुकाबला समाप्त हुआ. बिल्कुल उसी लाइन पर रिप्ले देखने को मिला. बिल्कुल उसी लाइन पर यह गेंद कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए यह सताने वाली गेंद है और
बाकी का काम पूरा किया विकेट के ऊपर स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा। इस बार गेंद को खेला स्क्वायर लेग पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो किया, लेकिन तब तक बड़ी देर के बाद एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 रनों पर। तीसरा ओवर 8 ओवर का मैच, आपको 35वें मिनट को आखिरी ओवर शुरू करनी है। 35 मिनट्स लास्ट ओवर स्टार्ट। और अब राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट प्रथमेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार मिड विकेट पर एक जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति हुई। ध्रुव ओवर पीपीएल ओवर, जिस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन टोटल। सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। गेंदबाजी में परिवर्तन। रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ प्रथमेश ठाकरे का। सफलता नहीं मिली, लेकिन रनों पर बिल्कुल रोक लगा दी उस ओवर में। जो ध्रुव ओवर था, जो बड़े शॉट का, बड़े रनों का, ज्यादा रन बनाने का ओवर रहता है, उस ओवर में सिर्फ 1 रन बनाया। 3 ओवर 19 रन बिना किसी नुकसान से। रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ कमेंट्री बॉक्स के ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट। अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, स्क्वायर लेग पर डीप पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। अच्छा थ्रो, 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 20 पर। दो ओवरसीज खिलाड़ी, 2 ऑल गोवा, एक ओर से अमृत वेरलेकर, संदेश ठाकुर। तो एक ओवरसीज खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो प्रथमेश ठाकरे और अक्षय तावरे। अपने बॉलिंग मार्ग पर रघुनाथ कास्कर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम की। अल्टी पल्टी की कोशिश, टॉप एज लगा थर्ड मैन पर। देखने का फील्डर दूर है और ओहो बिल्कुल रोक नहीं पाए। बहुत अच्छी कोशिश थी थर्ड मैन बाउंड्री पर और तब तक गेंद निकली 4 रन के लिए। बड़ी देर के बाद 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में और इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 24 विदाउट लॉस। डीजे शॉट, लेकिन थोड़ा सा खतरा जरूर था थर्ड मैन पर। इस बार एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर और इसी के साथ सीधा हाथों में गेंद चली गई। स्नेहल मणिक जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और पहली सफलता मिलती हुई हसापुर क्रिकेट टीम को 24 रन 1 विकेट पर।
लॉन्ग ऑन पर कैच को पकड़ा स्नेहल मलिक ने और पहला विकेट इसी के साथ चला गया। 9 पर खुद के व्यक्तिगत 2 चौके लगाते हुए अमित मुड़गांवकर आउट होकर वापस और साईदत्त कोठावड़े का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। अक्षय तावरे ओवरसीज खिलाड़ी है और मैन फ्रॉम बारामती, बड़ी दूर से इस मैदान पर आ चुके सुरेश रैना मुर्मू सेतु ये मैदान पर इस पीपीएल का जो कि मैच खेलते हुए पावर्ड बाय गोमंचल डायरी। और रघुनाथ कास्कर अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर। ऑफ साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग अप, एक डीप लॉन्ग अप, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, वाइडिश लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। और पहली गेंद पर अल्टी पल्टी वाला शॉट, गेंद बड़ी देर तक हवा में, डीप बैकवर्ड कवर पॉइंट पर गेंद चली गई। देखना होगा अंपायर थोड़ा सा जायदा ले रहे हैं 4 या 6 का और अंपायर का इशारा 6 रन का। गेंद चली गई 6 रन के लिए। गेंद बड़ी दूर जो कि निकली थी वो पेड़ पर ही वहां पर जो कि अटक चुके हैं। तो हमारे बॉलबाज आकाश पर डंबा वो भी देख रहे हैं उस पेड़ के सामने। और रघुनाथ कास्कर अच्छा शॉट ऑन साइड पर देखना होगा। पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड किया, थ्रो किया लेकिन दूर थी गेंद इस बार विकेट के पर से। अच्छी फील्डिंग लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं रहा। एक ही एक्शन में हंसी फील्डिंग करते, एक ही एक्शन में गेंद को उठाया था, फील्ड किया था, 2 रन बने स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 32, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद इस बार। बल्लेबाज को फॉलो किया गेंदबाज ने, जैसे देखा गेंदबाज जो कि बल्लेबाज बैकफुट पर जा रहे हैं उनके पैरों में गेंद ये और जब तक कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। 33 टोटल स्कोर। खेल और 1 ओवर का यानी 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 33, लॉस ऑफ 1 विकेट, 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे साहिल मलिक उर्फ हसी वो आ चुके बॉलिंग बार पर और सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अक्षय तावरे। आते आते एक आक्रामक शुरुआत की, बड़ा शॉट लगा चुका है और वो स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑन साइड पर इस बार स्क्वायर लेग पर डीप पर फील्डर है, गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल, अच्छी फील्डिंग, शानदार थ्रो सीधा हाथों में, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन से।
बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, 4 ही फील्डिंग कर रहे हैं। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक सिंगल बन गया, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 34 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छा क्रिकेट मैदान पर चलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। और अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर साहिल मलिक। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। ऑफ स्टंप को छोड़कर एक पुलर लेन की गेंद, काफी रफ्तार के साथ और अच्छी लाइन पर एक डॉट गेंद के साथ बाकी का काम पूरा किया विकेट के पर स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा। फिर से अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ज़्यादा रूम नहीं दे रहे, ज़्यादा मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। ऑफ स्टंप पर ब्लॉक होल में लगातार गेंदे और एक बार फिर से सामने स्ट्राइक पर अक्षय तावरे सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। इस बार एक लेफ्ट शॉट, गेंद हवा में स्क्वायर लेग पर। ओहो नहीं, बिल्कुल शुरू में ऐसा लगा गेंद खड़ी हो चुकी है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन गेंद फील्डर से दूर और गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। पर जो कि निकले और गेंद को वापस किया। हवा का झोंका भी बहुत तेज बह रहा है। इस बार सामने मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद चली गई मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। 6 रन और बन गए और इन 6 रन के साथ स्कोर 47। तब आप बड़ी तेजी के साथ 47 रन पर पहुंचा, 47। इस बार मिड विकेट पर फील्डर सीधे हाथों में, शायद पहले शॉट पर बच चुके थे, हवा के झोंके के साथ गेंद बाहर निकली थी। पिछला शॉट बहुत ही अच्छा स्टॉप मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन इस बार कैच को पकड़ा गया और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिलता हुआ अक्षय तावरे आउट होकर वापस। लेकिन एक छोटी लेकिन शानदार बल्लेबाजी, 3 छक्के लगाए अपने बल्लेबाजी में, 22 रन बनाए और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकला सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम का डीजे। ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर, एक नया ओवर शुरू होता हुआ। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, देख लो पहला रन बड़ी तेजी के साथ वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, बैकअप हो रहा था लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर का और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में और 2 रन जुड़ गए स्कोर में। 2 रन के साथ 49 पर पहुंचा टोटल स्कोर। मुकाबला दूसरा चलता हुआ HYS वॉरियर्स आशापुर वर्सेस सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा के 2 टीमों के बीच में और संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में।
स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए साई दत्त कोठावड़े, नॉन स्ट्राइकर इन पर अभी अभी आ चुके हैं अमृत वेरलेकर। इस बार फिर से एक जोरदार शॉट खेलना चाहते थे। एक छोटी सी पारी 22 रनों की, जो 3 छक्के लगाए अक्षय तावरे ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन विकेट भी चला गया उनका। और उनके बाद अमृत वेरलेकर मैदान पर आ चुके हैं। संदेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये गेंद खड़ी हो गई, कवर पर एक आसान सा मौका और एक सफलता मिलती हुई, और एक विकेट चला गया। तो इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। उससे पहले 7 गेंदों में 22 रन 3 छक्के लगाने वाली अक्षय तावरे की बल्लेबाजी, लेकिन अभी अभी आउट होकर वापस संदेश ठाकुर को मिली सफलता। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 49 रन, 49 लॉस ऑफ 3 विकेट। फोर्टी 49 लॉस ऑफ 3 विकेट, 49 रन 3 विकेट पर। ओ अच्छी गेंद, आते आते एक अच्छे लगभग ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेन की गेंद, सम्मान दिया अपने फॉलो थ्रू में, गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए संदेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 8 ओवर का मैच है, पहला मैच तगड़ा मुकाबला रहा। एक गेंद बाकी जो कि रह चुकी थी और वहीं पर मुकाबला समाप्त हुआ। गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम ने मैच को जीता था। छोटी गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, देखने होगा मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद, पहले रन के लिए निकले, क्या दूसरा रन मिलेगा? जी नहीं। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, 50 रन टोटल पूरे होते हुए टीम के। सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम, खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवर का, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 50 रन 3 विकेट पर 22 रन बनाकर खुद के व्यक्तिगत। अक्षय तावरे उन्हीं के साथ 17 रन बनाकर आउट हुए थे। साई दत्त कोठावड़े, और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो संदेश ठाकुर का 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ, 12 रन और 1 विकेट। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण और देखना होगा फिलहाल बॉलिंग में क्या परिवर्तन। सामने प्रथमेश ठाकरे की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन उनका भी गेंदबाजी का विश्लेषण। कोई सफलता जरूर नहीं मिली, लेकिन एक बहुत अच्छा ओवर रहा। और देखना होगा फिलहाल आने वाली 12 गेंदों में कितने रन बना लेती है सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। आइए माइक्रोफोन पर जुड़ जाते हैं जय भोसले के साथ। बॉलिंग मार्ग पर रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ। धन्यवाद अशोक। महत्वपूर्ण मुकाबला और रघुनाथ उर्फ भाऊ दूर वाले एंड से। ओ बहुत बढ़िया गेंद, ब्लॉकल में ऑफ स्टंप यॉर्कर की यह गेंद सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में। क्या ये हफ्ता गुजरा है? पिछले हफ्ते आपने करण अंबाला देखा, केतन म्हेत्रे को देखा इस मैदान पर, और आज यहाँ पर देखिए जो पिछले हफ्ते नहीं खेले थे वो आउट स्टेशन खिलाड़ी इस मैदान पर इस प्रतियोगिता के दौरान आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी रघुनाथ उर्फ भाऊ कास्कर, जानते परिभाषा को, इस पिच को भली भांति जानते हैं, और वो एंड उनका पसंदीदा एंड है। उस एंड से गेंदबाजी करना वो हर समय पसंद करते हैं। और देखिए क्या है, ये बची हुई अब 10 गेंदे हैं, और 10 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे ये आने वाला समय तय करेगा। ओ इस बार निश्चित रूप से तो सीधी पैरों से टकराई, हल्की से अपील कर दी गई है। मिस फील्डिंग देखने को मिली, लेकिन अमृत वेरलेकर चाहते होंगे खुद के लिए स्ट्राइक, लेकिन आखिरकार उनको भागना पड़ा दूसरे रन के लिए, क्योंकि हर एक रन पेश कीमती। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 52 52 रन स्कोर बोर्ड पर। पिछला मुकाबला लगभग ऐसा ही कुछ था, लेकिन यहाँ से बची हुई गेंदों में रन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे इस मैदान पर, जो कि अनुमानित स्कोर 80 के आसपास का होता है। वो वैसी बल्लेबाजी यहाँ पर करनी पड़ेगी आपको।
ओ फिर एक बार मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक निकाला है जरूर, हंसी आपको नजर आते हुए मैदान के क्षेत्र में गेंद को जब तक फील्ड करते, एक रन के साथ काफी देर के बाद अमृत वेरलेकर को स्ट्राइक मिली है। ये इस मैदान में एक इतिहास इनके नाम के ऊपर भी दर्ज है। एक जुजलार पर वो 65 रनों की एक झटपट पारी, जब संकट में टीम 27 पे 6 आउट थे, तब अमृत वेरलेकर की वो पारी जिससे चलते उनकी टीम फाइनल जीत चुकी थी इस मैदान पर, और यही इतिहास दोहराने के, लेकिन थोड़ी देर से आए, लेकिन वो कारनामा उनको करना पड़ेगा। एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनफॉर्म बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी बेहतरीन करते हैं और बल्लेबाजी तो शानदार करता है ये खिलाड़ी। और इस बार खेल दिया है, गैप में जरूर है खिलाड़ी, वहां पर डीप में तैनात, मिड विकेट मैदान पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। एक रन के साथ अपना खाता खोला सिंगल के साथ, टोटल अब पहुंचा है 54, 54 रन स्कोर बोर्ड पर। वैसे तो टोटल उतना है बड़ा नहीं, 2-3 बड़े शॉट की आवश्यकता नहीं भाई टीम को, अगर यहाँ से सामने वाली टीम के ऊपर आपको दबाव डालना है तो। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ी, चाहे प्रथमेश हो, चाहे संदेश ठाकुर हो, अमृत वेरलेकर को यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे भाऊ। ओ इस बार उठाकर खेला, गैप में गेंद है, देखिए गेंद जैसे टकराई, एक मधुर से आवाज, थप्पड़ शॉट, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर। टोटल स्कोरबोर्ड पर आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। अक्षय टावरे ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी है अपने टीम के लिए, शानदार, लेकिन वो एक शॉट जो कि नीचे नहीं रख पाए और बेहतरीन कैच वहां पर लपका गया जो कि मिड विकेट पर, जिसके चलते हुए थोड़ा सा मैं कहूँगा 10-15 रन कम बने हैं। अगर यहाँ पर अक्षय टावरे अब तक मौजूद होते तो कुछ बात बन सकती थी। गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के लिए स्नेहल मणि आपको नजर आएंगे ठीक कॉमेंट्री बॉक्स के सामने से, और सामना करेंगे अमृत वेरलेकर। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में जरूर खुद स्वप्निल मणि गेंद तक पहुंचते, 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 61, 61 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 गेंदों का खेल बाकी है। पेडनेम प्रीमियर लीग 2025 10वां साल, दशक पूर्ति का ये प्रतियोगिता और डे नाइट की प्रतियोगिता, देखना है 4 दिन चलने वाला ये समर, कौन होगा चैंपियन इस 10वें साल का। ओ बल्ले को लगी थी अंदरूनी किनारा, यहाँ पर थोड़ा सा गेंद ने चकमा दे दिया विकेट कीपर को, और 1 रन और खाते में, सिंगल के साथ टोटल 62 पर पहुंचा है, 62। यहाँ पर अगर बात की जाए तो विकेट ज्यादा गवाए नहीं है, लेकिन रनों के ऊपर अंकुश लगाया है असापुर टिप दे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व, फील्डिंग भी लाजवाब रही है मैदान पर। और अब देखना है अमृत वेरलेकर है स्ट्राइक पर। छोटी गेंद इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, संदेश ठाकुर है गेंद के नीचे, और ये लड्डू कैच था, संदेश ठाकुर ऐसे कैच छोड़ते नहीं, अमृत वेरलेकर आउट होकर वापस निकलते हुए, टोटल रन संख्या सिर्फ 62 पर रुकी हुई, और 1 विकेट का पतन होता हुआ। और अब मैं तो कहूंगा ये 70 के आसपास का टोटल होगा। पिछला मुकाबला रहा था लगभग 78 रनों का पीछा कर रही थी टीम, ये उससे भी कम होने की संभावना है, लेकिन अमृत वेरलेकर को नीचे रखना क्या फायदेमंद साबित हो गया। मैं तो कहूंगा अमृत वेरलेकर के वो 10-15 रन कम बचे, और जिसके चलते हुए एक अनुमानित टोटल जो बताया जाता है इस मैदान पर, निर्धारित 8 ओवर में 80 के आसपास का टोटल आपको बनाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से वही से कम नजर आता हुआ ये टोटल इस मैदान पर इस मुकाबले के दौरान।
मैदान के अंदर सामना करेंगे स्नेहल की गेंदबाजी का। ये 3 गेंदें महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। कितने रन बनेंगे इन 3 गेंदों में। पटकी हुई गेंद इस बार खेला, अपर कट स्ट्रोक देखने को मिला जरूर। पॉइंट थर्ड मैन की डीप थर्ड मैन पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 63 रन 63 रन, जो कि अगर बात की जाए तो 2 गेंदों का खेल बाकी, 2 बड़े हिट की है आवश्यकता अगर मैच को और रंगीन बनाया जाए तो। ओ इस बार शायद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली है, शायद बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। एक कटर गेंद आपको नजर आती हुई या टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, काफी घुमाव था इस गेंद में, जिसके चलते हुए बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हो गए हैं। और इस बार उठाकर खेला है, आखिरी गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट, गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए और इस छक्के के साथ टोटल जो कि आप पहुंचा है 69 रन पर, यानी कि जीतने के लिए 70 रनों की है आवश्यकता निर्धारित 8 ओवर में। मुकाबले की अगर बात की जाए मैं कहूंगा ये मुकाबला आसान नहीं होगा क्योंकि सामने वाली टीम के पास गेंदबाजी भी भरपूर है। पिछला मुकाबला आपने देखा मानो 78 रन का पीछा कर रही थी, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चला गया था, एक गेंद बचाकर वो मुकाबला जीता गया था। लेकिन वह यहां पर भी उसी तरह की कुछ संभावना जताया जा रहा है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा खेल है, क्या होगा आने वाले समय में ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, सुनते हैं अंग्रेजी में विवरण श्याम कलंगुटकर के साथ दूसरी इनिंग का आगाज, और तब तक सुनते हैं डीजे का सुमधुर संगीत। In the second game of PPL Season 10,
2025 HYS Hasapur, HYS Warriors Hasapur needing 70 in their 8 overs. Munna along with Prathamesh Thakre in the middle. And with the ball, it will be Mandar. Mandar Zatia. Munna, aka Salil Naik, Ekaz Raja, as they call him. 50 runs in that. Amdar Chashak back in. Oh, goes over. And no chance for the fielder who was hovering behind the stumps. Behind the square leg region. Gets off the mark with the boundary. Does Munna. Was ready for it. Shuffled across. And swung for a boundary. Right of the fielder, and will come back for the second. Looks really fit and confidence of that 15 that Amdar Cheshak back in Margao. 6 of first 2 deliveries. Match coming up next. HYS Warriors Hasapur to take on Ganpati Warriors Ozrim. That's up in the air. Keeper settling and takes it quite comfortably. Akshay Thavre taking the catch. And Manoj with that wicket. It's 6 for 1. aka Hussey. 6 for the loss of 1. Target of 70 runs in 8 overs. Currently with that wicket of Salil Naik. Nicely bowled. Turn to the bat, straight to the fielder. And will just be 1. Gets off the mark straight away, does Sahil. Single taken, score moves to 7. 7 for the loss of 1 wicket. Requiring another 63 runs to win. Just trying for the paddle round the corner. Missed out. Mandar Zatia with those off-cutters, fast off-cutters.
Plenty of teams, 12 teams altogether in this PPL 2025 Season 10, powered by Gomanchal Dairy. Oh, would have been gone on the stumps, but not to be. Hesitation. And it just... comedy of errors. Both the batsmen were stranded in the middle and just hit the edge of the wicket, and it went in the other direction. And still nobody could pick it up and throw it onto the stumps. A dot delivery to end the over. It's 7. 7 for 1 after completion of the first. HYS Warriors, Hasapur. Change in bowling, it will be Akshay Thavre. And goes over the top. And that's gone full onto the rope for a maximum. Short delivery and thumped. It's a dot delivery, bowling it full this time. Akshay Thavre. Again, good delivery and easily played. Gets a single. Maximum of the first, then a dot, and now a single. 3 deliveries have gone by. Score moves to 14. 14 for the loss of 1. Just wants that man at mid wicket a bit squarer. Again, just glides it. Another single taken. Score moves on to 15. Target of 70 runs required to win. As far as this batting of HYS Warriors, Hasapur is concerned. With so much of firepower in the sheds. It's down the leg side. And good work by Papi. Will just be 1. Just getting the turn of the bat. It definitely would have been a boundary, as it was a wrong line that was bowled by the bowler. Very fortunate to get away. This time through the covers. Excellent timing. No chance for the fielder. He'll just have to fetch the ball from the boundary. What a shot that is. Supreme timing. After completion of the second, it's 20 for 1. 20 will be change in voice as Ashok Naik sir will be, in fact, it will be Jai Bhosle sir to take over. ट्वेंटी 20 रन 68 का टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए। और देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ, फील्डिंग में भी परिवर्तन। शुरू के 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और अमृत वेरलेकर दिखाई देते हुए बॉलिंग मार पर और स्ट्राइक पर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे साहिल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रथमेश। थर्ड मैन बाउंड्री पर ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ
ऑन साइड पर एक लॉन्ग गन है, एक मिड विकेट है, एक डीप स्क्वायर लेग है। इस बार शॉर्ट आर्म बॉल मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट बन गेंद पर, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिला। फील्डर कोशिश कर रहा था लेकिन गेंद दूर थी, गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 पर और 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 26 पर। इस बार ऑफसाइड पर कट किया गेंद को वाइडेस्ट गली की तरफ। देखने होगा दूसरा रन तो जरूर बनेगा। जब तक थर्ड मैन से जाते गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 28 लॉस ऑफ 1 विकेट। एकमात्र विकेट साहिल जो पहले विकेट के रूप में 6 पर अपने खुद के व्यक्तिगत आउट पर वापस। सलील जो इस बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट, बैकवर्ड कवर पॉइंट पर और एक लाजवाब शॉट। कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद जो कि निकलते हुए फील्डर गेंद से दूर और 4 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। डीजे टू लॉस ऑफ 1 विकेट। अल्टी पल्टी वाला शॉट, गेंद सीधी, ओहो एक आसान सा मौका शॉट कवर पर कैच छूटा। रुपेश फील्डिंग कर रहे थे शॉट एक्स्ट्रा कवर पर और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता लेकिन एक बिल्कुल आसान मौका था। पेंडिम प्रीमियर लीग पर्व 10वां 2025 पावर्ड बाय गोमंचल डेयरी। बहुत बहुत शानदार जो कि इस आयोजन इस बार हल्के खेला डीले हाथों से। देखना होगा हाना हाना कर रहे थे, आखिरकार रन के लिए निकले। एक सिंगल पूरा किया, गेंद निकले लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। मैच को जीतने के लिए बनाने हैं टोटल 70 का टारगेट है और आधा स्कोर बना चुके हैं अब तक 35 रन 1 विकेट पर। फिर से अच्छा क्रिकेट, गली पर फील्डर, एक सिंगल और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 12 रन प्रति ओवर रन बनाते हुए टोटल स्कोर हो चुका है 36 लॉस ऑफ 1 विकेट। 10वां पर्व है पावर्ड बाय गोमंचल डेयरी। धन्यवाद एक बार फिर से उपस्थित सभी दर्शक, सभी मान्यवर। इस 10वें पर्व में आज पहले दिन रात का सफर जो दर्शक tenniscricket.in से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखना होगा चर्चा हो रही है गेंदबाजी की जिम्मेदारी किनके हाथों में सुपुर्द की जाए। तब तक ले चलते हैं हमारे संदीप डीजे के साथ। दूसरा टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए अक्षय तावरे अपने बॉलिंग मार्ग पर 3 ओवर 36 लॉस ऑफ 1 विकेट 36 रन 1 विकेट पर। आने वाला मैच होगा गणपति वॉरियर्स वज्रिम और HYS वॉरियर्स आशापुर। इन दो टीमों के बीच में पहला मैच जीत चुकी है गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम और ये जारी है दूसरा मुकाबला सत्या देवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट नईबाग के साथ। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया बिल्कुल अपने फॉलोथ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अक्षय तावरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। विकेट कीपर के साथ अगल बगल में 2 फील्डर है, एक फ्लाइंग स्लिप पर एक शॉर्ट पाइन लेग, ऑफ साइड पर एक डीप बैकवर्ड कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक वाइडेस्ट लॉन्ग अप, एक कवर पॉइंट, एक मिड अप।
का शानदार स्क्वायर कट खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री। हल्के से खेला इनको, इस बार रन के लिए निकले स्लिपर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 41 रन पर। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और एक शॉर्ट फाइन लेग। 5 ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर। अच्छी गेंद, लेग कटर, सम्मान दिया फिर से एक बार से लिमिट अप पर फील्डर, और जैसे ही देखा फील्डर दूर है, आंखों में इशारा और एक सिंगल और बना दिया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 42 पर 42 पर। खेल जारी है चौथे ओवर का। अक्षय तावरे का यह दूसरा ओवर। शानदार बल्लेबाजी और अब गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, शांत क्रिकेट, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन सम्मान के साथ सिंगल बना रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है मैदान पर। हर गेंद के साथ रन बना रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अल्टी पल्टी के लिए पहले बिल्कुल जो कि, लेकिन बल्लेबाज जैसे देखा स्टांस कहां पर, स्टांस बदल चुका था और इसे अंपायर का सही इशारा। एक डॉट गेंद के साथ खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रनों का जवाब देती हुई मैदान पर टोटल हो चुका है स्कोर 43 रन पर। रन 24 डिलीवर 27 रन। और गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं मंदार झाटिया। ओ, एक बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बीट करते हुए, विकेट कीपर को बीट करते हुए, 22 का इशारा और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद, इस बार सामने ड्राइव किया, इस बार अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छी फील्डिंग मंदार की। गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर साहिल, और साहिल के साथ प्रथमेश ठाकरे जो ओवरसीज खिलाड़ी, और सामने मंदार झाटिया अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ, पोलर लेन की गेंद, एक जोरदार शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद थोड़ी नीची भी रही, थोड़ी सी हरकत करते हुए लेग कटर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे एक बार फिर से मंदार अपने बॉलिंग मार्ग पर। नॉन स्ट्राइकर इन पर है साहिल, एकमात्र विकेट सलील का आउट होकर वापस एकच राजा। इस बार टॉप एज लगा, देखने का फाइन लेग की तरफ लंबी दौड़, लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज है बगल में, और गेंद आती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए।
रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 51 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार हल्के से गेंद को चॉप किया ऑफ साइड पर, थर्ड मैन पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 पर पहुंचा, टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। टोटल मैच को जीतने के लिए 8 ओवर में 70 रन अब तक स्कोर हो चुका है, 52 लॉस ऑफ 1 विकेट। 19 गेंदों का खेल और 18 रन चाहिए, 19 चेंडूत 18 धावा। छोड़ा, इस बार जाने दिया, तेज गेंद करने की कोशिश, मंदार की ऑप्टम से बाहर, थोड़ा सा लाइन पर बट के वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 23 पर खुद के व्यक्तिगत साहिल बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों का सामना करते हुए, और नॉन स्ट्राइकर इन पर प्रथमेश ठाकरे बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 रन पर 15 गेंदों का अब तक सामना करते हुए। एक लोअर फुल टॉस सामने उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकली। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। डीजे गेंदों का 3 ओवर का खेल बाकी है, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 13 रन, 18 चेंडू 13 धावा सामना जिंकण्यासाठी। मुकाबला जारी है मैदान पर सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नाइबा क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ HYS वॉरियर्स आशापुर क्रिकेट टीम। आने वाला मैच होगा गणपति वॉरियर्स वजरीम और HYS वॉरियर्स आशापुर क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन उससे पहले देखना होगा, गेंदबाजी में चर्चा हुई, छोटी सी टीम मीटिंग, और उनके उसी के साथ अमृत वेरलेकर दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर। 3 ओवर और अंपायर का इशारा, जो ध्रुव ओवर का PPL ओवर का। पेडने प्रीमियर लीग पावर्ड बाय गोमलचल डेयरी। थोड़ा सा दूर से खेला इस बार गेंद को, बिड़ा पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 13 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और 13 रन बनाने के लिए 17 गेंदों का ये चलता हुआ ध्रुव ओवर PPL ओवर। इस बार थोड़ा सा दूर से गेंद खड़ी हो गई कवर पर, अच्छा कैच, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर कैच को पकड़ा। फिर से थोड़ा सा दूर से ये शॉट खेला तो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, और सफलता मिलती हुई अमृत वेरलेकर को। दूसरा विकेट चला गया टीम का। डीजे सत्रह गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए प्रथमेश ठाकरे ने, और उनके आउट होने के बाद साहिल का साथ देने के लिए कप्तान आ चुके हैं मैदान पर, स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा। अमृत वेरलेकर सफलता दिलाते हुए अपने टीम को अपने बॉलिंग मार्ग पर। आते आते गजब का टाइमिंग, बहुत ही लाजवाब, मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। पैरों पर गेंद थी।
इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए एक बार फिर से गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। 4 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 67 रन। सिर्फ 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए HYS वॉरियर्स आशापुर क्रिकेट टीम को। अमृत वेरलेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार हल्के से चॉप करना चाहते थे, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड होती हुई। खेल जारी है, ध्रुव ओवर का PPL ओवर का जो छठा आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। क्या इस ओवर में आने वाली गेंद पर यह मैच समाप्त होगा या विकेट निकालेंगे? बल्ले से लगी गेंद लेकिन विकेट के पर से दूर, तो कोई रन नहीं बना। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 2 ओवर बाकी है, 12 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 3 रन। प्रसाद, माफ कीजिए, प्रसाद नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फील्डिंग में थोड़ा डीप एक्स्ट्रा कवर है, सामने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। इस बार हवा में मार बैठे, कैच का मौका बनेगा अपने पॉलिथ्रू में गेंद के नीचे। कैच छूटा और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन बना, अगर शुरू में कोशिश रहती लेकिन गेंद के ऊपर देखते रहे, नहीं तो दूसरा रन भी बन सकता था। लेकिन मालूम है कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन देखना होगा जो कि लीग का फॉर्मेट है। अच्छी गेंद ऑफसाइड पर हल्के से खेलना चाहते थे, पॉइंट पर एक सिंगल के लिए निकले। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 10 गेंदों का खेल बाकी है, अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 1 रन। 2 रन, 10 गेंदों में 2 रन। इस बार स्वीप किया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा, उससे पहले शानदार बल्लेबाजी रही थी प्रथमेश ठाकरे की, 17 रन बनाए थे। साहिल ने नॉट आउट इनिंग के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और आखिर में 14 रन बनाए। स्वप्निल मलिक ने 1 छक्का लगाया, 2 चौके लगाए। साहिल ने बनाए शानदार बल्लेबाजी के साथ 28 रन बनाए और देखा जाएगा फिलहाल स्कोरर के साथ चर्चा होगी मैन ऑफ द मैच जो इस दूसरे मैच का कौन होगा। और उसी के बाद मुकाबला आने वाला हो रहा है गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम कैप्टन आइए प्ले टॉस के लिए और उन्हीं के साथ HYS वॉरियर्स हसापुर क्रिकेट टीम जो अगला मैच होगा, जो तीसरा मैच होगा आज के पहले दिन रात का पेडनेम प्रीमियर लीग पावर्ड बाय गोमलचल डेयरी। और आखिरकार चर्चा के बाद मैन ऑफ द मैच बल्लेबाजी में जिन्होंने 28 रन बनाए, 13 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के, गेंदबाजी में 1 सफलता 14 रन देकर, और वही ऑलराउंडर खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच इस मैच के साहिल मलिक मैन ऑफ द मैच। चलिए साहिल मलिक मैन ऑफ द मैच और दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए गणपति वॉरियर्स वज्रिम और HYS वॉरियर्स आशापुर। अगला मैच हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। दोनों टीम चलिए प्लीज टॉस के लिए। और जैसे खेल की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में आवाज जय भोसले की। चलिए साहिल मलिक मैन ऑफ द मैच इस मैच के।